Hello guys, how do you do? I hope you would be well, very well, and stay at your home and stay healthy. Today I have come to take a new chapter, that is narration. This topic is very important for all our students who are either preparing for SSC, banking, or any other board examinations like CBSE, BSCB, ICSE, any board. I'll teach you from basic to advanced, and having taught, I will make you a lot of practices because as you know that practice makes a student perfect. So you will practice more and more. Therefore, you can get everything, even transform from direct to indirect speech, write any speaker's statement or conversation or a speaker anything, and you will be expert after this chapter in speaking and also in writing. So now I'm going to start narration chapter. Narration, that means then the word narrate, narration has been taken the word narrate, that means to say or to speak, to speak, and we shall know about in this chapter direct speech and indirect speech. If we talk about the Hindi of narration, that is called कथन, स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कथन कह सकते हैं. It has two ways, direct speech, indirect speech, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन. We shall know about this in details. At first, we shall know what is narration. We may report the words of a speaker in two ways, direct speech and indirect speech. Direct speech and indirect speech. We also talk about this pratyaksh kathan or apratyaksh kathan. What is direct speech? The speech quoted in the actual words of the speaker is called direct speech. That means if any speaker speaks any statement, speak any statement, that is called direct speech. It is always written with inverted commas. That means direct speech, indirect speech, inverted commas is used, and the statement of a speaker separated with inverted commas. What is indirect speech? What the speaker said without quoting his exact words is called indirect speech or reported speech. It is also called reported speech. Dear students, if we talk about direct speech, then this is a speaker's statement, and if anyone will say the statement of a speaker in his own word, that is called indirect speech. It is not separated with inverted commas. It is combined with linking word, that means conjunctions. It has been written here, the speech which is under quotation mark or inverted commas in writing is called direct speech, and the verb by which it is expressed is called reporting verb. And at first we shall know direct about the direct speech. We have to know, and it is very essential to know about the direct speech and indirect speech. So let's start direct speech.
Look at this sentence. Sentence is given is the boy says to me. The boy says to me, comma, inverted comma, I go to a school in time, full stop, inverted comma, closed. This is sentence of direct speech. And I shall analyze this sentence in which to a statement, the boy says to me and I go to a school in time. Then if we talk about the boy says to me, then this is called reporting a speech. Okay, this is called reporting a speech. The boy says to me is reporting a speech, and I go to a school in time is called reported speech. Have you got? इसमें द बॉय सेज टू मी जो है, ये जो कहलाएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और जो इन्वर्टेड कॉमास जो सेपरेट है, इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। एंड दिस इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये पूरा द बॉय सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, और इसका जो वर्ब हुआ यानी सेज टू is the verb of reporting a speech, that is called reporting verb. Okay, that is called reporting verb. And this one, this is the subject of reporting verb. This is the subject of reporting verb. ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ, यानी we can say the subject of reporting verb, and this is an object of reporting verb. This is called the object of reporting verb. And in this sentence, if we talk about go, then go is reported verb. Then I hope you will understand this sentence and analysis of this sentence, analysis of direct speech. Once I will repeat this, dear students, this sentence is from direct speech, and the sentence which is out of inverted commas, that is called reporting a speech, and the sentence which is separated with reported speech, that is called uh, separated with inverted comma, that is called reported speech. And in reporting a speech, the verb of reporting a speech is called reporting verb, and this is the subject of reporting verb, and this is द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट है, इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट है, देखिए यहां पर, यहां जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट है, ये पूरा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, द बॉय सेज टू मी, लड़का कहता है, मुझसे कहता है, तो यहाँ पर ये एक्शन करने वाला बॉय है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और एक्शन किस पर हो रहा है? मी पर हो रहा है, एक्शन मी पर हो रहा है, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ये कहलाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में इतना ही है। और इसमें हम लोग चेंज क्या क्या चीज, चेंजेबल क्या चीज होगा, देखिए इसमें चेंज जो होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी टेंस में किसी तरह का हम चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें जो है इसको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। रिपोर्टिंग स्पीच जैसे सेज टू है तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे, से टू है तो उसको टेल में चेंज करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, उस तरह से हम लोग उसमें चेंजिंग करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग जनरली चेंज करते हैं, और कैसे करते हैं जो हम आगे देखेंगे।
देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर होता की बात करें तो द बॉय टेल्स मी दैट ही गोज टू स्कूल इन टाइम, इसमें जो है डैट जो है वो कंजंक्शन का प्रयोग हुआ, यानी द रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच आर ज्वाइंट बाय अ लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड दैट मीन्स कंजंक्शन दैट इफ वेदर ये सब से ये कंडक्ट होता है, एंड द इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड, और इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे वो ओमिटेड रहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इसमें हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद जो है इसमें कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ओके, now we shall know how to change into डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। देखिए there are two rules for changing into direct speech to indirect speech। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो नियमों का पालन हम लोग करते हैं, पहला जनरल रूल, दूसरा स्पेशल रूल होता है। जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल तीन प्रकार के होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर थ्री रूल्स of this sentence: change of person, change of tense and change of other parts of speech. At first we shall know about change of person. The change of person is, what is change of persons? If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb of the direct speech is not changed at all. Then change of person, if the reporting verb is in the present, यानी रिपोर्टिंग verb आप देख रहे हो, रिपोर्टिंग verb जो हमने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग verb, तो रिपोर्टिंग verb अगर यानी कह सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग verb जो है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग किसी तरह का रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कैसे चेंज करते हैं देखिएगा, लेकिन उसमें पर्सन जो है वो चेंज करेंगे। पर्सन कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई बी, आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई बी होता है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन जो होगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई बी अगर रहता है, आई बी अगर रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट या कोई नेम रहता है या दे रहता है तो उसको हम किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, द सेम वही चीज लिख देंगे। देखिए कि इसमें केस टेबल को हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है, फर्स्ट पर्सन में आई बी होता है, आई सिंगुलर है, बी प्लुरल है। सेकंड पर्सन में यू होता है, सिंगुलर में भी यू होता है, प्लुरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होता है। अगर हम ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जितना भी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गए, ठीक है। इसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये हमेशा जो है सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। और अगर इसके ऑब्जेक्ट को हम देखें यानी ऑब्जेक्टिव केस को देखें तो आई का मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का ही, हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट होता है, दे का देम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ होता है, बी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का
इटसेल्फ होता है, दे का देम सेल्व्स होता है। उसी तरह से पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब अधिकार होता है। तो अगर हम जैसे आई का अधिकार दिखाने वाला वर्ड अगर हम देखेंगे तो आई, तो अगर हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा कलम है तो दिस इज माई पेन। अगर हम कहते हैं कि यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, यानी मैं कह रहा हूं, तो इसमें हम कौन ऐसा वर्ड बोले जिससे हम इस पर अधिकार दिखा रहे हैं? माई बोले। तो यहाँ पर आई जब बोले तो माई हुआ, तो बी बोलेंगे तो आवर होगा, यानी मैं का मेरा हो गया, हम लोग का हमारा हो गया, तुम का तुम्हारा हो गया, वह का उसका हो गया, वह का उसकी हो गई। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। और ये जो है माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे हम ये कहते हैं कि यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, यह कलम मेरा है, ए बी से यह कलम मेरा है, देन दिस पेन इज माइन। तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आवर्स का प्रयोग हुआ है, योर्स का प्रयोग हुआ है, हर्स, डियर्स, ये सब जो है पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये सब याद रखना, इसलिए अपने माइंड में ये रखना जरूरी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, क्योंकि हमेशा जो है ये चीज याद रखिएगा कि हम पर्सन को करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, ये नहीं कि उसके केस को चेंज करेंगे। यानी यहाँ अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट ही आएगा। अगर कहीं पर आई लिखा हुआ है और आई को किसी चीज में चेंज करना है तो इतना में से ही कोई में आएगा। ऑब्जेक्ट है मी है, तो मी में से अगर किसी चीज को चेंज करेंगे तो इतना में से कोई ही आएगा, इस तरह से आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के से हम लोग समझेंगे। देखिए इसे सोनू सेज टू मी आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए इसमें कहता सोनू सेज टू मी, सोनू सेज टू मी आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहां पर देखिए इसको हमने आप देखा होगा कि इसमें जो है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, है ना? इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच इसको हम बोलते हैं और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। तो हमने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहता है, ठीक है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज टू, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सोनू है, तो सोनू क्या है? मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। तो मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो अगर हम इसके प्रोनाउन की बात करें तो इसका प्रोनाउन क्या हो सकता है? इसका प्रोनाउन ही होगा, ठीक है, इसका प्रोनाउन ही होगा। तो इसका प्रोनाउन जब ही होगा तो यहाँ पर आई देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एम, देखिए आई एम, यानी वर्ब के पहले जब कोई वर्ड आ रहा है तो ये समझिए कि वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट ही आएगा, यानी सब्जेक्ट ही आएगा, और इसका सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। समझ में आया बात? यानी इसमें अगर सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर मी रहता, अगर यहाँ पर मी रहता है ऑब्जेक्ट के रूप में रहता, तो यहाँ पर ही का हिम हो जाता। तो आई यहाँ पर हो गया आई, तो आई का ही हो गया, और ईज हो जाएगा आई के अनुसार एम। इसमें चेंज ऑफ पर्सन सिर्फ होगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में, और प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर ही इज हो जाएगा रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई होप यू गॉट इट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज कि ही टेल्स, सेज टू को टेल्स में बदले, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जहाँ पर डैट का प्रयोग किए, और यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
सेकंड देखते हैं। प्रकाश हैज सेड टू मी, प्रकाश हैज सेड टू मी यू हैव डन द वर्क प्रॉपरली। आप देखिए इसमें ये देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आप पहले जान चुके हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर देखिए प्रकाश हैज सेड लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि सेड लिखा हुआ रहता है तो चेंज ऑफ टेंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज सेड लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी प्रेजेंट टेंस का, तो जब प्रेजेंट टेंस का है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्रकाश हैज टोल्ड मी, प्रकाश हैज टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जहाँ पर डैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि और कुछ है। यहाँ पर हैव के पहले आ रहा है यानी वर्ब के पहले आ रहा है, तो जब वर्ब के पहले आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो इसके जगह पर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्ट आई, तो यू के अनुसार जिस तरह से हैव लगा तो आई के अनुसार हैव का ही प्रयोग होता है, डन द वर्क प्रॉपरली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, प्रकाश हैज टोल्ड मी दैट आई हैव डन द वर्क प्रॉपरली। अगला देखते हैं, रिया विल से टू मी शी विल रिसाइट द कुरान रेगुलरली। अब देखिए ये जो है ये फ्यूचर टेंस का है, तो इसमें रिया विल टेल मी दैट। अब यहाँ पर सी जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वेरी गुड, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन कभी चेंज होता है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी यहाँ पर ये सी जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी सी का सी ही लिखा जाएगा, यानी सी विल रिसाइट द कुरान रेगुलरली हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिया विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का प्रयोग किए, सी का सी छोड़ दिए, विल रिसाइट द कुरान रेगुलरली। अगला देखते हैं इसमें, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे दिया हुआ है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी दिया हुआ है, तो आप ये प्रेजेंट टेंस का है, तो ही सेज टू को हम क्या में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। वेरी गुड, इसको हम क्या में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे, इसको हम टेल्स में बदलेंगे, और टेल्स मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का प्रयोग करें। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई यहाँ पर क्या है, या आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम के पहले आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है, तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही का ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो है आई के अनुसार एम का प्रयोग करते हैं, तो ही के अनुसार इज का प्रयोग। अब योर जो है वो कौन सा पर्सन है, यू का जितना भी फैमिली मेंबर है सब सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर योर जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। अब योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमने बताया था कि केस में कुछ किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके जगह पर पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा। तो योर मतलब अधिकार दिखाने वाला वर्ड है, तो मी का अधिकार दिखाने वाला वर्ड क्या होता है, वेरी गुड, मी का अधिकार दिखाने वाला वर्ड माई होता है, इसलिए यहाँ पर माई हो जाएगा।
फ्रेंड एंड यू। अब यहाँ पर देखिए यू आ गया सेकंड पर्सन फिर से, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार। अब यहाँ पर देखेंगे कि यू है क्या, यू जो है वर्ब के पहले आ रहा है, यू वर्ब के पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है। तो यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो यू के अनुसार आर, तो आई के अनुसार एम हो जाएगा। उसके बाद माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट किधर है, खोजिए, सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, माई यहाँ पर अधिकार दिखला रहा है यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का अधिकार दिखवाने वाला वर्ड यानी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ही का क्या होता है, हीज होता है। तो यहाँ पर हीज हो जाएगा, हिज फ्रेंड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर देखते हैं आगे है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा है, जो इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो हम चेंज ऑफ टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जनरली इसको ये समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम और रहता है, ठीक है, तो उसको बॉज वेयर में चेंज कर दें। रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा से जो सेपरेट रहता है उसमें इज एम और रहेगा तो उसको बॉज वेयर में, बॉज वेयर रहेगा तो हैडबिन में, हैडबिन रहेगा तो चेंज नहीं करना है, हैडबिन का हैडबिन हो जाएगा। हैव रहेगा तो हैड में, हैड को नो चेंज करना है। डू रहेगा डीड में, डीड रहेगा हाइड डन, हाइड डन रहेगा नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हेड प्लस V3 है। शैल बिल रहेगा तो शुड में, मे या कैन रहेगा तो माइट या कुड में, कुड माइट शुड ये सब रहता है और टू रहता है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मस्ट रहेगा तो मस्ट का मस्ट भी लिख सकते हैं और हैड टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं कि अगर हम टेंस की बात करें तो सिंपल यानी जितना भी प्रेजेंट है ना वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, उस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे अगर ये दिया हुआ है कि आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी सी सेड, ठीक है, तो सी सेड डैट, सी ऑलवेज ड्रिंक का यहाँ पर V1 दिया हुआ है उसको V2 में चेंज कर दिया, यानी V1 या V5 दिया हुआ रहता है, V1 या V5 दिया हुआ रहेगा तो उसको V2 में चेंज करेंगे। इज एम आर रहेगा बॉज वेयर में चेंज करेंगे, V2 रहेगा हाइड प्लस V3 में चेंज करेंगे। जैसे ही सेड दिया हुआ है बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे, तो ही सेड दैट बिल हैड अराइव्ड, यहाँ पर V2 है तो हैड प्लस V3 में चेंज होगा। यानी ये चीज याद रखिएगा कि अगर V1 या V5 रहता है तो उसको V2 में चेंज करेंगे, ठीक है, V1 या V5 रहता है तो उसको V2 में चेंज करेंगे। इज एम आर बॉस बेयर में चेंज करेंगे, बॉस बेयर हैडबिन में चेंज करेंगे, हैज हैव हैड में चेंज करेंगे, V2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए ही सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, ही सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर ये देखिए ही सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी,
तो सेड टू है यानी पास्ट का हो गया तो टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी डैट आई फर्स्ट पर्सन आप पहले सीख चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में ही है, आई यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है यानी एम के पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और इज एम आर वाज वेयर में बदलता है तो ही वाज वेरी हैप्पी यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी कॉमन वेटर को मगर जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे ही वाज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट देखिए आई सेड टू देम यू आर वर्किंग टुगेदर। तो आई टोल्ड देम यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में देम है तो यहाँ पर दे हो जाएगा दे और आर है तो वेयर में चेंज करेंगे दे वर वर्किंग टुगेदर। ओके नेक्स्ट देखिए ही सेड टू मी रीना हैज लर्न हर लेसन। तो ही टोल्ड मी रीना थर्ड पर्सन है कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हैज है तो हैड में चेंज कर देंगे हैड लर्न हर यहाँ पर थर्ड पर्सन है कोई चेंजिंग नहीं लेसन्स यानी इसका आंसर ही टोल्ड मी दैट रीना हैड लर्न हर लेसन। उसके बाद द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री फॉर सम डेज। तो द पेशेंट told the patient told the doctor that कॉमन वेटर कोमा का जब डैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए पेशेंट है तो पेशेंट जितना भी जो कॉमन जेंडर वाले जो रहेंगे जैसे पेशेंट में पता नहीं चलता है कि लेडी भी हो सकते हैं जेंट्स भी हो सकते हैं या चाहे तो स्टूडेंट को देखें तो गर्ल भी हो सकते हैं बॉय भी हो सकते हैं, डॉक्टर को देखें तो गर्ल भी हो सकते हैं बॉय भी हो सकते हैं। देन उसमें जो है मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है तो यहाँ पर ही हो जाएगा ही और हैव हैड में बदलता है तो ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री फॉर सम डेज। यही आंसर हो गया। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मीन्स जो सत्य है जो दुनिया में सत्य माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहें या हैबिचुअल फैक्ट कहें या कांस्टेंट एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट कहें तो इसमें टेंस का चेंजिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी चेंजिंग टेंस में नहीं करेंगे। जैसे देखिए द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि देखिए इसमें चेंजिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कभी मतलब ऐसा नहीं था कि पहले था अब नहीं है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर सेड डायरेक्ट और ऑनेस्टी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह से इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज टू और more verbs occurring at the same time the tense of the verbs is not changed at all। अगर किसी भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दो या दो से अधिक वर्ब दिए हुए हैं और सारा एक्शन जो है एक ही समय में हो रहा है, सारा एक्शन जो है एक ही समय में हो रहा है तब भी हम उसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। जैसे देखिए द क्लास टीचर सेड Mr. Ant worked hard while Mr. Grasshopper slept। आप देखिए मिस्टर आंट जो है यानी चींटी जो है कड़ी मेहनत की जबकि उसी समय जो है ग्रासहॉपर सोया, मतलब दोनों एक्शन एक ही समय में हो रहा है तो इसमें हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, यानी वही चीज लिख देंगे मिस्टर आंट वर्कड हार्ड while Mr. Grasshopper slept। उसी तरह से the game teacher said the children sang, danced and played। अब तीनों एक ही साथ हो रहा है तो इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। अब देखते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि अगर नियरनेस वाला वर्ड रहता है तो उसको डिस्टेंस वाले वर्ड में तब्दील कर देते हैं। जैसे देखिए अगर दिस रहेगा तो उसको डैट में चेंज कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में दिस रहेगा डैट में, दिस डे रहेगा दैट डे, दिस दोस दिस डेज दोज डेज, हेयर देयर नाउ देन टुडे दैट डे,
yesterday, the day before, tomorrow, the following day, या the next day में भी चेंज कर सकते हैं, at the moment, at that moment, last night, the night before, या the previous night, last year, the year before, and next year, the following year, tonight, that night, ago को before year, earlier में चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये रहता है तो इसको इधर वाले में चेंज कर देंगे। जैसे अगर ये है ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, ठीक है, तो ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही है तो ही वुड, विल को वुड में बदलेंगे, ही वुड कम, अब टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, तो यहाँ पर द फॉलोइंग डे लिखेंगे, टुमारो के जगह पर द फॉलोइंग डे लिखेंगे। जैसे देखिए द ओल्ड मैन सेड आई एम लिविंग इन ढाका नाउ, तो इसका क्या, इसका आंसर नाउ दिया हुआ है तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे इसमें। द ओल्ड मैन सेड, यहाँ पर देखिए सेड का सेड ही लिख दे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड का सेड ही लिख दिए, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पर डैट का प्रयोग किए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ओल्ड मैन के अनुसार यहाँ पर ही हो गया। ई से हमारा बाज में बदलता है तो इसलिए हमने बाज लिख दिया। लिविंग इन ढाका और नाउ का देन होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। उसी तरह से द स्टूडेंट सेड आई मस्ट डू द सम, तो इसमें मस्ट के बारे में दे दिए हैं कि मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, तो यही द स्टूडेंट सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार स्टूडेंट है तो ही हो जाएगा, ही हैड टू डू द सम। अब उसके बाद प्रैक्टिस है जो कि मैं आप लोग को दे दूंगा, और तब एक प्रैक्टिस जो है इसमें देख लीजिए। ही सेज टू मी आई शैल बीट द बॉय, he says to me I shall beat the boy, तो he tells me, ये प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें he tells me होगा, that चेंज ऑफ टेंस तो नहीं होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार he will beat the boy, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, he tells me that he will beat the boy। उसी तरह से the teacher said tomorrow is a holiday, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का है, the teacher said दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है तो द नेक्स्ट डे आई एम आर वाज वेयर में चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो द नेक्स्ट डे वाज अ हॉलीडे। ही सेड टू मी यू आर मिस्टेकन, तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज मिस्टेकन, इस तरह से हो जाएगा। करीम सेड टू मी यू आर राइट, तो करीम टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, आई वॉज राइट। उसी तरह से ही सेड द मैन कम्स, तो V5 है, ही सेड दैट द मैन कम्स है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 हो गया, केम हो गया। ही सेड हियर कम्स माय फ्रेंड, तो उसका हो जाएगा ही सेड दैट देयर केम हिज फ्रेंड्स। You said to me my father is coming home today, तो इस तरह से you told me that my फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में you है तो you का your हो गया, your father was, यहाँ पर coming का going इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो समय बीत गया है, तो जैसे आप अगर घर पर हैं या कहीं पर भी मिले कि तो उस समय जिस समय आप ये एक्शन हुआ है उस समय आप कहेंगे कि हाँ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उस जगह से दूसरे जगह रहिएगा तो हाँ वहाँ गए थे, इस तरह के सेंस में, इसलिए गोइंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, गोइंग होम टुडे का दैट डे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। जनरल रूल जो है समाप्त हो गया, अब हम लोग स्पेशल रूल की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।